الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ مقبول احمد ہے۔ ریئل لائف ود قرآن یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سورہ ناس کے بارے میں بتاؤں گا، اور سورہ ناس کو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سورہ ناس کو پڑھتے ہوئے ہم کہاں کہاں پر غلطی کرتے ہیں اور کس طرح کی غلطی کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے ایک تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ سورہ ناس کو پڑھتے ہوئے کہاں غلطی کرتے ہیں، اور دوسرا اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے اس غلطی کو صحیح کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک آپ نے ضرور دیکھنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی بہت ساری غلطیاں ٹھیک ہونے والی ہیں۔ اب اس سورت کو پڑھتے ہوئے جو سب سے پہلے غلطی ہوتی ہے وہ اس لفظ میں ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دو نقطوں والا کاف ہے اور یہ ڈنڈے والا کاف ہے۔ تو دو نقطوں والا کاف اور ڈنڈے والا کاف یہ دو الگ الگ حروف ہیں۔ دو نقطوں والے کاف کو ڈنڈے والے کاف کی جگہ پر نہیں پڑھ سکتے، اور ڈنڈے والے کاف کو دو نقطوں والے کاف کی جگہ پر نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ دونوں حروف کاف ڈنڈے والا اور دو نقطوں والا کاف، ان دونوں حرفوں کا مخرج بھی الگ ہے، اور ان دونوں حرفوں میں پائے جانے والی صفات بھی الگ الگ ہے۔ اگر مخرج کی بات کریں تو جو دو نقطوں والا کاف ہے اس کا مخرج یعنی کہ اس کے نکلنے کی جگہ زبان کے جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے، اور یہ جو ڈنڈے والا کاف ہے اس کے نکلنے کی جگہ زبان کے جڑ اور تالو کا سخت حصہ ہے۔ تو اب مخرج کے اعتبار سے بھی یہ دونوں حروف الگ الگ جگہ سے نکلتے ہیں۔ اور اگر صفات کی بات کریں تو جو دو نقطوں والا کاف ہے اس میں صفت اصطلاح پائی جاتی ہے، اور جن حرفوں میں صفت اصطلاح پائی جاتی ہے ان حرفوں کو موٹا یعنی کہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ دو نقطوں والا کاف یہ حروف مستعاریہ میں سے ہے، تو اس کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ اور اگر اس کاف کی بات کریں تو یہ کاف اس میں صفت استفعال پائی جاتی ہے، اور جن حرفوں میں صفت استفعال پائی جاتی ہے ان حرفوں کو بریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس ڈنڈے والے کاف کو بریک کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہ جو کاف ہے دو نقطوں والا کاف، اس کو اگر اس کے مخرج سے پڑھیں تو پھر ایک تو زبان کی جڑ تالو کے نرمی سے کے ساتھ لگے گی، اور دوسرا یہ پر پڑھا جائے گا جس طرح قول قول قول۔ تو اب اس کاف کو پڑھتے ہوئے ایک تو زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے نکل رہا ہے، اور یہ کاف زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند بھی نہیں ہوگی اور یہ باریک بھی پڑھا جائے گا۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ قل قل قل، تو یہ باریک پڑھا جا رہا ہے، قل قل قل۔ تو یقیناً ان دونوں حرفوں میں جو غلطی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اس کو پر کر کے پڑھنا ہے اور اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ تو اب اس میں سب سے پہلے حمزہ کی آواز کو نکالنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے آ آ آ آ، اور اگر آ کی بجائے پڑھ دیا آ، عین کی آواز نکال دی جو کہ اس لفظ میں ہے، تو یہ عین پہلے نہیں ہے، پہلے تو حمزہ ہے، اس میں پہلا حمزہ ہے، تو حمزہ کی آواز نکالنی ہے اور اس کو آ پڑھنا ہے۔ اور اگر آ پڑھ دیا تو پھر آپ اس عین کو پڑھ رہے ہیں جو کہ غلط ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس لفظ میں عین ہے تو عین کی آواز بعد میں نکالنی ہے، پہلے حمزہ آ پھر عین کی آواز او آ او آ او آ او۔ اور اگر حمزہ کی جگہ پر عین پڑا تو پھر آ، اور اس عین کی جگہ پر حمزہ کی آواز نکالی تو پھر بن جائے گا او۔ تو یہ لفظ ٹوٹلی غلط ہے۔ دیکھیں اس میں پہلے عین آ گیا آ، پھر حمزہ آ گیا او آ او، تو یہ غلط ہے۔ پہلے عین کی آواز نہیں نکالنی، پہلے آپ نے حمزہ کی آواز نکالنی ہے اور اس کے بعد عین کی آواز نکالنی ہے اور پڑھنا ہے آ او آ او آ او۔ تو یقیناً آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ حمزہ کی جگہ پر ہم عین نہیں پڑھ سکتے، اور عین کی جگہ پر ہم نے حمزہ نہیں پڑھنا، وگرنہ یہ والا لفظ پڑھا جائے گا جو کہ غلط ہے۔ تو آپ نے اس لفظ کو غلط نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے اس لفظ کو پڑھنا ہے پہلے حمزہ پھر عین۔ تو یقیناً آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اس لفظ کو پڑھتے ہوئے ہم کون سی غلطی کرتے ہیں۔ اب آگے آ جائیں اس لفظ کی طرف۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، اس میں یہ سب سے پہلے نون ہے، تو نون یہاں پر مشدد ہے۔ مشدد اس حرف کو کہا جاتا ہے جس حرف پر شد ہو، تو یہاں پر نون کے اوپر شد ہے، تو نون کے مشدد ہونے کی وجہ سے یہاں پر غنہ ہوگا۔ تو اب جب ہم با کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو بن جائے گا برب الناس، بن بن بن۔ تو غنہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آواز کو ناک میں لے جا کر تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، بن 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 بن۔ تو یہ غنہ ہو رہا ہے، آواز ناک میں جا کر تھوڑا سا لمبی ہو رہی ہے۔ تو پہلا تو غنہ ہو گیا، اور دوسرے نمبر پر یہاں زبر کے بعد الف ہے، تو زبر کے بعد الف کے آ جانے کی وجہ سے یہاں پر ہم نے زبر کو بھی لمبا کرنا ہے۔ اگر زبر کو لمبا نہ کیا تو پھر الف کی آواز کٹ جائے گی۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ بن ناس، پہلے غنہ ہوا، بن، پھر آگے زبر کو لمبا کیا، ناس
बिन नास। समझ आ रही है? पहले बिन गुन्ना, बिन बिन, फिर आगे अलिफ, नास नास नास। तो यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, पहला गुन्ना होगा और दूसरा अलिफ मद्दा है, इसकी वजह से हमने इसको लंबा करके पढ़ना है। तो ज़बर को कहाँ पर लंबा करना है, ज़ेर को कहाँ पर लंबा करना है, पेश को कहाँ पर लंबा करना है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले ज़बर ज़ेर और पेश को लंबा करने वाली वीडियो देखें, उस वीडियो के ज़रिए आपको ये पता चलेगा कि हमने ज़बर ज़ेर पेश को कहाँ पर लंबा करना है। उसके बाद आप ये वीडियो देखें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले तो नून पर गुन्ना किया और उसके बाद हमने अलिफ मद्दा की वजह से इसको लंबा किया, बिन नास बिन नास बिन नास। तो यकीनन इस लफ्ज़ में जो गलती होती है उस गलती के बारे में आपको पता चल चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें उसी तरह ये लफ्ज़ आ गया, पहले नून पर गुन्ना होगा, फिर नून को हमने लंबा करना है। तो कैसे पढ़ेंगे, किन्नास माली किन्नास किन्नास, पहले गुन्ना हुआ, फिर ज़बर के बाद अलिफ के आ जाने की वजह से हमने इसको लंबा किया। अब आगे आ जाए तो यहाँ पर ये देखें, इस लफ्ज़ पर ज़रा थोड़ा सा गौर करें। इस लफ्ज़ में क्या होता है, अक्सर मैंने देखा है कि लोग इस लफ्ज़ को पढ़ते हुए हा की जगह पर हमदा पढ़ रहे होते हैं, यानी कि वो इस लफ्ज़ को पढ़ रहे होते हैं जिसमें हमदा है। तो इस लफ्ज़ को पढ़ते हुए हमने हमदा की आवाज़ नहीं निकालनी, बल्कि यहाँ पर हा की आवाज़ निकालनी। और उसको कैसे पढ़ना है, इलाहिन्नास इलाहिन्नास हिन्नास हिन्नास। और इसको लोग पढ़ रहे होते हैं इन्नास इन्नास, हा की जगह पर हमदा की आवाज़ निकाल रहे होते हैं। तो हा की जगह पर हमदा निकालना ये बहुत बड़ी गलती है, आपने इस गलती से बचना है और आपने हा की आवाज़ ही निकालनी है और इसको पढ़ना है इलाहिन्नास इलाहिन्नास इलाहिन्नास। अगर आपने पढ़ दिया इलाहिन्नास तो फिर आप ये पढ़ रहे हैं इलाहिन्नास इलाहिन्नास, तो ये गलत है। अब आगे आ जाए, यहाँ पर ये देखें, इस लफ्ज़ को देखें, तो यहाँ पर ये नून आ गया और नून के बाद यहाँ पर ये शीन आ गया। तो नून साकिन है और इसके बाद शीन हुरूफ इख्फा में से है। तो नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के आ जाने की वजह से यहाँ पर हमने नून पर गुन्ना करना है, नून की आवाज़ को नाक में ले जाकर थोड़ा सा लंबा करना है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, मिन 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 मिन। अब यहाँ पर इस लफ्ज़ को देखें, यहाँ पर क्या है, पहले वाव है और उसके बाद अलिफ है। तो वाव के बाद अलिफ आ गया और वाव पर ज़बर है। तो जहाँ पर भी ज़बर के बाद अलिफ आ जाए वो अलिफ मद्दा होता है, वहाँ पर हमने ज़बर को लंबा करना होता है। तो यहाँ पर वाव के ऊपर ज़बर और बाद में अलिफ, इसलिए यहाँ पर हम वाव को लंबा करेंगे और इसको पढ़ेंगे वस वा वस वा वस वा वस वा। अगर वाव को लंबा ना किया और इसको पढ़ दिया वस वसा, तो फिर ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जाएगा वस वसा। तो यहाँ पर देखें वाव के बाद अलिफ नहीं है, तो अलिफ क्यों नहीं है, इसलिए कि हम यहाँ पर ज़बर को लंबा नहीं कर रहे और इसको पढ़ रहे हैं वस वसा वस वसा वस वसा। तो ये गलत है, वस वसा नहीं पढ़ना, बल्कि आपने ज़बर को लंबा करना है और इसको पढ़ना है वस वा, आगे सीन को लाम के साथ मिला देना है, वस वासिल खन्नास वस वासिल वस वासिल वस वा वस वा वस वा। तो ज़बर को लंबा करना है तो फिर ही अलिफ की आवाज़ ने निकलना है। अगर ज़बर को लंबा ना किया तो फिर अलिफ कट जाएगा। तो अलिफ को नहीं काटना, बल्कि आपने ज़बर को लंबा करके अलिफ को लाजमी पढ़ना है, वरना ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जाएगा जो कि सरासर गलत है। तो यहाँ तक आपको बात की समझ आ चुकी होगी कि हमने इस लफ्ज़ को कैसे पढ़ना है। तो अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ। तो इसमें ये वही है कि यहाँ पर ये नून मुशद्दद आ गया तो गुन्ना होगा और उसके बाद अलिफ आ गया तो इसको लंबा करना है। तो कैसे पढ़ेंगे, खन्नास खन्नास, पहले गुन्ना खन, फिर ज़बर के बाद अलिफ, नास लंबा करना है, खन्नास खन्नास खन्नास। अब आगे आ जाए। अब यहाँ पर देखें इस लफ्ज़ में जो गलती होती है वो ये है कि यहाँ पर ये देखें, ये ज़ाल है, तो ज़ाल और ज़ा ये दो हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो ज़ाल को ज़ा नहीं पढ़ना और ज़ा को ज़ाल नहीं पढ़ना। तो इस लफ्ज़ में जो लफ्ज़ है वो है ज़ाल। तो ज़ाल को पढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि ज़ाल को पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, ज़ाल को सीटी की आवाज़ के बगैर पढ़ना है। अगर ज़ाल को पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ पैदा हो गई तो फिर ज़ाल ज़ाल नहीं रहेगा, बल्कि वो ज़ा बन जाएगा। तो ज़ा में सीटी की आवाज़ है और ज़ाल में सीटी की आवाज़ नहीं है। तो ज़ाल को पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ के बगैर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, अल्लज़ी अल्लज़ी
अल्लज़ी। तो देखिए दाल को पढ़ते हुए सीढ़ी की आवाज़ बिल्कुल पैदा नहीं हो रही और ये पढ़ा जा रहा है अल्लज़ी अल्लज़ी अल्लज़ी। और अगर पढ़ दिया अल्लज़ी तो फिर ये ज़ा पढ़ा जा रहा है अल्लज़ी अल्लज़ी, सीढ़ी की आवाज़ आ रही है अल्लज़ी अल्लज़ी, तो ये गलत है। तो ज़ाल और ज़ा ये दो हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो आपने ज़ाल पढ़ना है, ज़ा नहीं पढ़ना, वगरना ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जाएगा जो कि गलत है। अब अगले लफ्ज़ की तरफ आ जाए तो ये देखें इसमें क्या है, यहाँ पर ये देखें या के ऊपर पेश है, तो पेश को हमने लंबा नहीं करना। अगर पेश को लंबा कर दिया तो फिर पेश को लंबा करने से वाव साकिन की आवाज़ पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पर पेश को लंबा करके वाव साकिन की आवाज़ को पैदा नहीं करना। और इसको कैसे पढ़ना है, युवस्विसु युवस्विसु। और अगर पढ़ दिया युवस्विसु यू तो फिर आप इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा पेश को लंबा किया, पेश को लंबा करने से वाव साकिन की आवाज़ पैदा हो गई, तो पेश को लंबा नहीं करना, युवस्विसु ये गलत है, युवस्विसु युवस्विसु ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जा रहा है तो ये गलत है। तो आपने इस लफ्ज़ को पढ़ना है और या के ऊपर जो पेश है इसको लंबा नहीं करना और इसको पढ़ना है युवस्विसु युवस्विसु युवस्विसु। तो यकीनन इसके बारे में आपको पता चल चुका होगा कि इस लफ्ज़ को पढ़ते हुए हम क्या गलती करते हैं। अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ, तो ये देखें यहाँ पर ये स्वाद है, तो स्वाद और ये सीन ये दो हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो स्वाद को सीन की जगह पर नहीं पढ़ सकते और सीन को स्वाद की जगह पर नहीं पढ़ सकते, वगरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, स्वाद है, तो आपने स्वाद की आवाज़ निकालनी है। तो स्वाद को निकालने का जो तरीका है वो ये है कि स्वाद को पढ़ते हुए एक तो हमने ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद करना है और दूसरा ज़ुबान के दरमियान वाले हिस्से को तालु के दरमियान वाले हिस्से से मिला देना है। तो फिर ये स्वाद, इसमें जो दो सिफ़तें हैं, सिफ़त इस्तिला और सिफ़त इतबाक, इन सिफ़ात के मुताबिक ये पुर पढ़ा जाएगा। तो कैसे पढ़ना है, सुदू 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 सुदू। और अगर इसको सुदू की बजाय इसको पढ़ दिया सुदू सुदू तो ये सीन पड़ा जाए सु, ये देखो सु सु सो 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 सो। तो सीन और स्वाद इन दोनों हरफों की आवाज़ों में फ़र्क है। तो स्वाद को पढ़ते हुए पुर करना है, ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद करना है और ज़ुबान के दरमियान वाले हिस्से को तालु के दरमियान वाले हिस्से से मिलाना है। तो फिर ये स्वाद पढ़ा जाएगा, वगरना सीन पढ़ा जाएगा जो कि गलत है। और इसी लफ्ज़ में जो दूसरी गलती होती है वो ये है कि यहाँ पर ये देखें दाल के ऊपर पेश है और पेश के बाद आगे वाव है। तो यहाँ पर हमने दाल के ऊपर जो पेश है इसको लंबा करना है, सुदू सुदू सुदू। अगर पेश को लंबा ना किया और इसको पढ़ दिया सुदू तो फिर ये पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर ये देखें ये दाल के बाद वाव नहीं है तो सुदू सुदू पढ़ा जा रहा है, सुदू नहीं पढ़ना बल्कि सुदू सुदू। पेश को लंबा करना है, सुदूरिन्नास सुदूरिन्नास सुदू सुदूरिन्नास। तो यकीनन आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो हम गलती करते हैं वो ये होती है कि एक तो हम स्वाद को नहीं पढ़ते, स्वाद की जगह पर सीन पढ़ते हैं, और दूसरा दाल को लंबा करना है। तो दाल को लंबा ना करना ये गलती है, तो दाल को लंबा करना है, सुदू 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 सुदूरिन्नास। अब आगे इस लफ्ज़ की तरफ आ जाए तो ये तो पीछे हमने पढ़ लिया है कि यहाँ पर नून मुशद्दद है, गुन्ना भी होगा, इसको लंबा भी करना है, नास सुदू और रिन्नास रिन्नास। अब आगे आ जाए, यहाँ पर ये देखें मिनल जिन्नती, तो यहाँ पर ये नून मुशद्दद आ गया तो यहाँ पर गुन्ना होगा, जिन्नती जिन्नती जिन्नती। और यहाँ पर ये नून मुशद्दद आ गया, यहाँ पर भी गुन्ना होगा, वन्नास वन्नास वन्नास। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने सूरह नास को सीखा और सूरह नास में पढ़ते हुए जो जो गलती हम में से अक्सर लोग करते हैं उन गलतियों की मैंने निशानदही की और आपको बताया कि अगर गलत हरफ पढ़ेंगे तो वो किस तरह पढ़ा जाएगा और गलत हरफ को हमने सही पढ़ना है तो किस तरह पढ़ना है। तो ये वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें और अगर पसंद नहीं आई तो बेशक इसको डिसलाइक कर दें। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान मजीद फुरकान हमीद को सही तरीके से पढ़ना सीख जाए। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह पाक हम सबको सही तरीके से कुरान मजीद फुरकान हमीद की तलावत करने, इसका अदब एहतराम करने और इसके हकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।